Hello, very good morning to all of you. Let us start with our daily PIB. So, our first news is National Logistic Policy. I would like to remind you, if you want to get the PDF of this whole video, you can get through with our Telegram link. So, let's start. Our first news is National Logistic Policy. National Logistic Policy, which was launched in 2022, and there are certain key points. The first one is the road, rail, customs, aviation, international trade, and commerce ministries are certain 7 departments which is having 30 distinct system, and it will come as digitally integrated as part of the IDS. Second one is the shorter cargo movement will be improved. Third one is ULIP, Unified Logistic Interface Platform, will facilitate easy cargo transfer. Fourth one is there will be ease of logistic e-log present. The policy will be put into place to streamline and regulations to make the logistic industry easier. Next, STEAM System Improvement Group, that is SIG, is tasked with periodically accessing all logistic relating products and removing any barriers. The main goal of this policy is to give young people opportunity so that they can work and develop their talents. Let us see the aims of this policy. So the first aim is this will help to reprocess, re-engineering, digitization and multimodal transportation. It will help to ease the process of transportation. Okay. Second one is it is a key decision since excessive logistic costs affect how competitive domestic products are on the global market. Third one is the National Logistic Policy 2022 was deemed necessary because India has higher logistic costs from other industrialized nations. Fourth one is India must drastically cut its logistic cost if it wants to increase the competitiveness of its export and domestic product. The goal of lower logistic cost is to increase economy-wide efficiency, allowing for value addition and business. The policy lays out an extensive interdisciplinary, cross-sectoral and multi-jurisdictional framework for the growth of the entire logistic ecosystem in an effort to solve concern of high cost and inefficiency. जो मेन एम है इस पॉलिसी का वो सबसे पहले क्या है कि ये इस प्रोसेस को री इंजीनियर करेगा, डिजिटाइज करेगा और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन से हेल्प करेगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करा सकें. जो थर्ड है वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वॉज डीम नेसेसरी बिकॉज क्योंकि जो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जा सके. ओके सो ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स थे और साथ ही साथ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में पहुंचा सके. और जो गोल है, मेन गोल है इसको उसका वो यही है कि हमारी इकॉनमी को और वाइड कर सके और हमारे वैल्यू एडिशन और बिजनेस को बढ़ावा दे सके. ठीक है, ये कुछ इसके मेन एम्स थे. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. जब भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कोई न्यूज़ या कुछ ऐसा पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा आपके मेंस के पेपर में, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, दयाल अंत्योदय योजना है ये जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था. ये जो योजना है वो बेसिकली जो भी इश्यूज़ हैं जेंडर स्पेसिफिक एंटाइटलमेंट और राइट्स को लेकर के ये बेसिकली उसको रिस्पॉन्ड करेगा. क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जेंडर रिसोर्स सेंटर्स हैं, इनका रिजोल्यूशन फाइंड करना, जो हमारे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स केसेस बढ़ते जा रहे थे, जेंडर बाय सोसाइटी बनती जा रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाना है. ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें यही मेंशन किया गया है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीआरसी हैज़ बीन अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर द प्रोग्राम रीअफर्मिंग DAYNRLMS कमिटमेंट्स टू द मैंडेट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट. तो बेसिकली जो दीन दयाल अंत्योदय योजना है ये वीमेन एम्पावरमेंट को
विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, ताकि जो भी जेंडर रिसोर्स जो सेंटर्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए, विमेन एम्पावरमेंट पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आइए फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन है क्योंकि ये किसके साथ मिलकर काम करेगी, जो भी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और प्रोफेशनल्स हैं इस सेक्टर स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए, उनके साथ मिलकर ये काम करेगी। दूसरा, ये जो इसका मेन इम्पैक्ट होगा वो लाइवलीहुड पे होगा, क्योंकि किसके थ्रू होगा, जैसे कि यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऑर्गेनाइज करा के, ताकि वो लोगों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सके, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा दे सके, उनको माइक्रो लाइवलीहुड प्लान्स के लिए उनको फैसिलिटेट कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके, ताकि वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट और बैंक उनको जो हेल्प प्रोवाइड कराए। ठीक है, बेनिफिट्स देखते तो पहला बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना। ठीक है, और गुड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, ताकि वो मार्केट वगैरह में जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो मार्केट में खुद को कनेक्ट कर सके। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, जो स्पेशली जो रूरल पुअर पीपल हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके, वो किसी और पे डिपेंडेंट उन्हें ना रहना पड़े। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स थे। फीचर सबसे पहला जो है सोशल मोबिलाइजेशन इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो हर एक औरत है, जो औरत है उसको क्या करना है कि उसको हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्ट करना है, ताकि हम ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे ही पूरी तरीके से ये जो स्कीम है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि जो वुमेन होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप से कनेक्ट होंगी, तभी उनको हम बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं ताकि वो अवेल कर सके सारी फैसिलिटीज़ को। ठीक है, सेकेंड वन इज़ टू आइडेंटिफाई रूरल पुअर पीपल। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली में हु आर द नीडी वन। तो जो रूरल पुअर पीपल हैं, ये स्कीम तभी मैंडेटरी, मतलब ये उनको मैंडेट करना है कि वो जो रूरल पुअर पीपल है वो इस स्कीम को अवेल कर सकें। तो ये हमारी स्कीम का जो मेन लक्ष्य होगा कि रूरल पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, थर्ड वन इज़ टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। इस स्कीम के तहत जो पुअर पीपल हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, उनकी ताकि वो अपने स्किल्स को एनहेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होगा कि ये जो स्कीम है वो दोनों साइड से काम करेगी, यानी कि वो डिमांड पे भी काम करेगी और सप्लाई पे भी काम करेगी। यानी कि वो पहले देखेगी मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट है जो हायर डिमांड पे है। ठीक है, ये उसको पहले देखेगी, उसके बाद जो किसान वगैरह हैं ये उनकी हेल्प करेगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को ग्रो करें। उसके बाद जो भी उसको ग्रो करने के लिए जो भी बैरियर्स होंगे ये उस पर काम करेगी। ठीक है, ये उनको सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कराएगी, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएगी, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि और कुछ कम्युनिटी फैसिलिटेटर प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि बैंक मित्र, बैंक सखी। ठीक है, जो लास्ट फीचर है इसका वो है कि एनहेंसिंग लाइवलीहुड। तो बेसिकली ये जो स्कीम थी वो एंटायरली हेल्प्स टू एनहेंस द लाइवलीहुड. So, to make the livelihood good at the poor, it organizes various programs to provide market value and also enhance their skill. The main aim is also to make their livelihood good and fulfill their needs mandatorily. Okay, so let's start with the next news. So, next news is और C20 जो है वो जो 2013 में लॉन्च हुआ था, ये ऑफिशियल G20 का ही एक पार्ट है। और ये बेसिकली क्या करेगा कि ये CSOs को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो नॉन गवर्नमेंटल पर्सपेक्टिव्स ऑन द इश्यूज बीइंग टेकन अप बाय द ऑफिशियल G20, एंड ऑल्सो इट विल गिव देम अ फोरम टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्राइमरी एंड कॉमन कंसर्न्स affecting the world and promote social and economic development. So let's see the important role can be played by CSOs. Okay, so the first one is CSOs and the traditional government structures need to be harnessed to achieve the goal of holistic development. Okay, second one is there are various C20 groups working on diverse domains ranging from integrated holistic health, education, digital transformation, gender equality to technology, security, transparency. Okay, so these groups have the potential to impact official policies and programs across all the dimensions of today's social, economic and environmental challenges. लेवल हैं जहाँ पे सिविल सोसाइटी और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो साथ में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए.
ठीक है, जो सबसे पहले स्कीम का एग्जाम्पल पेश किया गया वो है स्वच्छ भारत अभियान, और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है फॉर द सोसाइटी, एंड बोथ वर कम्प्लीमेंटेड बाय द हरक्यूलियन एफर्ट्स मेड बाय वेरियस सीएसओज इन दीज फील्ड्स। ठीक है, ऑर्डर लेवल पे देखें तो ऐसा पाया गया है कि जो रोबस्ट और एनलाइटेड सिविल सोसाइटी है ये एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट एनेबल्स द सिटीजन्स टू एंगेज इन डेलिब्रेटिव डायलॉग्स एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स outside the adversarial arena of electoral politics toward achieving the national objective। पॉलिटिकल जो इनसाइड पॉलिटिक्स है उसको नज़रअंदाज करते हुए, ताकि मतलब जो हमारा मेन गोल है नेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ, उस पर लोग डेलिब्रेटिव डायलॉग्स के थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो बेसिकली हमारा टास्क हमसे ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, CSOs हैं, G20 है, C20 है, ये सब साथ मिल के आगे बढ़ें ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ in modern state structures the government cannot act in a hasty manner on novel and untested ideas, okay, but the CSOs have a plenty of scopes as they operate in a bottom up approach and are more responsive towards the ever shifting ground realities। The CSOs can act as a force multipliers for the government। ओके, सो CSO का बेसिकली यही रोल है कि वो अगर CSOs और गवर्नमेंट साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स का काम करेगी। ठीक है, ये वाला जो C20 जो था हमारा टॉपिक है GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट न्यूज़ जो है PM श्री स्कूल्स, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। PM schools for rising India is basically a centrally sponsored scheme, and this will be a new scheme for developing of more than 4,500 schools across the country। So basically these schools will strengthen these numbers of schools by being managed by central government, state, UT government or local bodies। Okay, so PM Shri schools will showcase all components of NEP 2020, act as an exemplar schools, and also it will provide mentorship to the nearby schools। So let us see the key features। Key features are PM Shri will provide high quality education in an equitable, inclusive and joyful school environment। It will also take care of diverse background, multilingual needs and different academic abilities of children, which is under the vision of NEP 2020। PM Shri schools will provide leadership to other schools as well in their respective regions by providing mentorship। This is by mentorship also। And the next one is PM Shri schools will be developed as green schools। So this will work toward green, this will work toward environment। Okay, so incorporating environment friendly aspects like solar panels and LED lights, nutrition gardens with natural farming, waste management, plastic free, water conservation and harvesting, study of traditions or practices related to the protection of environment, climate change related hackathon and awareness generation to adopt sustainable lifestyle। So basically this will help to adopt a sustainable environment and for the sustainable lifestyle। Next one is it will adopt the pedagogy related to schools will be more experimental based, that will be more holistic, integrated, play to eye based, particularly in the foundational years। Okay, so as we know that the new NEP is based on 5 plus 3 plus 3 plus 4। So you this is foundational। Okay, foundational plus 5 is foundational, primary, middle and then secondary। Okay, सो ये उसी की बात कर रहा है कि जो पेडागोजी अडॉप्ट की जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होगी, हॉलिस्टिक होगी। ठीक है, स्पेशली इन द फाउंडेशनल लेयर यानी कि इन द इनिशिएटिव लेयर्स। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। फोकस हमारा दिया जाएगा वो लर्निंग आउटकम पे ज़्यादा फोकस करेगा रैदर देन रोट नॉलेज पे ध्यान देने की बजाय, रोट करने की जगह ये लर्निंग आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। और ये भी कह रहा है कि जो असेसमेंट किया जाएगा
रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व कर सके अपने अडॉप्ट किए हुए नॉलेज को, मतलब दैट विल बी मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट इज and so assessment of the resource available and their effectiveness in terms of availability, adequacy, appropriateness and utilization for each of the domains and their key performance indicators will be done, and gaps will be filled in a systematic and planned manner. Okay, next one is linkage with sectoral skill councils and local industry for enhancing employability and providing better employment opportunities will be explored. And also formation of SQAF, that is School Quality Assessment Framework, is being developed. Why? To specifying the key performance indicators to measure outcomes. So this is basically to undertake and to ensure the desired standards for the schools. स्ट्रेटेजी होगी, ये सारे स्कूल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी इसको लीड नहीं करेगी, और ये जो स्कूल्स होंगे वो विगरसली मॉनिटर किए जाएंगे. किस लिए? टू एक्सेस प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, एंड दिस इज द लास्ट न्यूज़ ऑफ आवर क्लास, गोबर्धन स्कीम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गोबर्धन? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज. सो गोबर्धन स्कीम जो है वो 2018 में लॉन्च की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड sanitation under the Ministry of Jal Shakti. This scheme focus on keeping villages clean, increasing the income of rural household and generating energy from cattle waste. ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, जिसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ODF यानी कि ओपन डिफेकेशन फ्री, एंड द सेकेंड वन इज SLWM यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कह रहा है कि यूनिफाइड पोर्टल ऑफ गोबर्धन एंश्योर्स द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोगैस स्कीम और इनिशिएटिव्स एंड द रियल टाइम ट्रैकिंग. ठीक है, लगभग 589 बायोगैस को आर फंक्शनल हैं, ये अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से 251 जो हैं दे आर स्टिल इन अंडर कंस्ट्रक्शन. आइए इसके मेन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं. इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू सपोर्ट विलेजेस टू सेफली मैनेज देयर कैटल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड इवेंचुअली ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट. ओके, सेकेंड वन इज द scheme supports communities converting their cattle and organic waste to wealth using decentralized systems. Through effective disposal of waste in rural areas, the schemes helps to curb vector-borne diseases. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो vector-borne diseases जो हमारे वेस्ट से जनरेट होता है उसको ये कम करने में बहुत मदद करेगी. ये आपके हेल्थ सेक्टर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इस स्कीम के तहत जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उनको बढ़ने से रोक सकते हैं. Next point is the conversion of organic waste, especially cattle waste, to biogas and fertilizer for use in rural areas. Last point is the scheme promote rural entrepreneurship, employment and income generation opportunities. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस लगाएंगे तो ये क्या करेगी? उस एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित होगी. तो ये थी आज की न्यूज़. अगर आपको इस चैनल का PDF चाहिए तो आप डेली PIB करके टेलीग्राम हमारे ग्रुप से ले सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी. थैंक यू एंड जय हिंद.